Good morning, students. How are you? I think you are doing hard work and understanding object oriented programming very well. I am happy by seeing your assignments and the practical problems. So, today we will understand the new unit, that is our input output file management. As this unit basically shows how we can input through keyboard and output on screen, as well as how we can input and output from file. So file is also a one entity in our programming. It is basically secondary unit, as we are using this file for storing our data permanently. By keyboard, we can input our data temporarily. It means as soon as the computer is on, we can use this input values, and as soon as this will be become off, our all values will be volatile. तो आज हम देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से इनपुट आउटपुट और फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने वैल्यूज को यूजर से इनपुट और आउटपुट ऑन स्क्रीन और फाइल के द्वारा भी कैसे करते हैं, उसे आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इस यूनिट को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें। ये यूनिट में बहुत सारी जो हेडिंग्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसे हम ऑलरेडी यूज कर सके, लेकिन नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर इन वेरी स्पेसिफिक कंसेप्ट। तो मैं आपको एक विजुलाइज करा दूं कि हम इस यूनिट में क्या क्या चीजें समझना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि यू नो द कंसोल। आपको कंसोल पता है? तो देखिए, कंसोल को हम किस तरीके से समझते हैं। वन इज द कीबोर्ड, ठीक है, एंड हमारे पास स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले। स्क्रीन को क्या बोल देते हैं हम? डिस्प्ले। ऑल्सो इट इज नोन एज ए आउटपुट। यहां पे हम अपना रिजल्ट इजिली देख सकते हैं। नाउ कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। ओके, तो हमारे पास कंसोल है, कीबोर्ड है, जिससे हम वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, और स्क्रीन है जिसके द्वारा we can get a output. So here we have our processor, ठीक है। Here we have our processor. So this processor can process the input value, and as per our programming instruction, it will display
the result on screen. So we can say from keyboard we can input the values and easily we can output to our screen. So for example, we have some values like say say 5, then 10, then 15, then 20, and then say 25. So these are the values, and these values one by one in stream we will read from keyboard, and through this CPU we can easily store these read value in the RAM. So as you know, there are two type of system memory. One is your RAM and second is your what? ROM. Okay? So there are the two memory. One is the RAM and second is the ROM. So what are the actually characteristics of this RAM and ROM? You know very well. The RAM is the random access memory and ROM is a read-only memory. Okay. So whenever we want to store temporary the values, we should use the RAM. So CPU will redirect your input to this RAM. And whenever CPU required the values, the CPU can also read value from the this RAM. Okay. So CPU always use just like we are using our mind, the same concept. The CPU is using this RAM. So what is ROM? तो ROM में क्या है? ROM basically is a read-only memory. We can't use for the storing the values. Okay. By this ROM, we can actually make a standard routines. Standard routine means we can read and write through keyboard and screen, but we also have program for this kind of operation, and this operation are written in the this ROM, and this ROM is basically given by the all manufacturers. So every computer is its own ROM. ठीक है, उनके पास उनका खुद का ROM होता है, and by this ROM they can use the all standard routines. Now basically this ROM contains basic input output routines, that is system. That is why this ROM contain BIOS, basic input output system. So here all routines that we required, we are using C in C out, but the C in C out is only have a high level programming. Actually they also required low level programming, that is system programming. So this system programming easily can fetch by this type of BIOS. So every computer is with their
specific bytes. We cannot change. It is a read-only memory. Okay. Now we also have a secondary memory. Now this secondary memory is nothing but we have a basically our hard disk. Okay. So this is come under the your permanent memory. So in this memory we have basically files. It is your hard disk. Now this hard disk actually we have a file. So we have to use the file management. So to use the effective operations, we have to use the file management. So whenever we want to store our permanent values, say 5, 10, 15, 20, 25, we can direct our RAM to store this value to where in the file. So these are the basically process how we are making this RAM to file management. Whenever CPU wants to process on this 5, 10, 15, 20, 25, say some of these values. So very first we have to read. So after reading, these values actually stored in the RAM, and from this RAM the CPU will fetch the all values, do the operations like a addition, and we will get a output on a screen. As we want to store this output in a file, then again the CPU will direct to RAM to store the result in the file. Now this file actually your permanent storage, and this RAM is a temporary storage. This RAM actually work till the system is working, but as soon as our system by accidentally or by some other issues, we can not retain our values. So this is a one requirement of the file management. अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम किए वो कीबोर्ड से रीड करने के एंड स्क्रीन में डिस्प्ले करने के आपको बताएंगे, लेकिन अब हमारे पास एडवांस कंसेप्ट्स में फाइल मैनेजमेंट को हम एज ए इनपुट आउटपुट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो है इनपुट आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए ये जो मैं आपको दो पार्ट में अब डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट इज यूर इनपुट आउटपुट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा जो पार्ट आ रहा है इट इज ए यूर व्हाट, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इट इज ए यूर इनपुट आउटपुट का पार्ट है, इट इज ए इनपुट आउटपुट, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये वाली चीजें पढ़ी हैं। नाउ आफ्टर दैट वी वांट टू यूज द फाइल मैनेजमेंट। तो अब हमें ये पढ़ना है और हाउ टू मेक ए वैल्यूज टू परमानेंट का काम है, ठीक है।
तो फाइल हम जो यूज करने वाले हैं वो कौन सी फाइल होगी? तो देखिए, फाइल बहुत सारी टाइप की हो सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की डॉक है, या फिर एक्सेल है, फिर हमारे पास में .txt है। तो नॉर्मली वी विल यूज अवर txt फाइल। तो फाइल का जो एक्सटेंशन आपको यूज करना है, दैट इज द यूर data.txt। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे मैं आपको जो फाइल क्रिएट करना है या फाइल से रीड और राइट करना है, उसके लिए वी विल यूज द data.txt का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हमारा ओवरव्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या चीजें इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इस यूनिट में वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है भाई, ये चीज को आप लोगों को एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, आपने ये वर्ड सब सुना है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। तो हमारे पास जो भी रीड एंड राइट का सिस्टम है, इट इज इन द स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज और यहाँ मैं क्लियर कर दूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको मेरे ख्याल से दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बताया होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस कंसेप्ट। तो देखिए, मैं आपको बस थोड़ा सा बता दूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लेट वी हैव ए रैम। ये हमारे पास सपोज करिए रैम है। नाउ इन दिस रैम वी हैव ए सिंपली द सेल्स। मैं यहाँ पर सेल बना रहा हूं। से दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज ए सेकेंड सेल, थर्ड सेल, लाइकवाइज वी हैव ए ऑल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सपोज करिए कि वैल्यूज रखनी है। तो there is a two method, one is the sequence method and second is the random। तो random method is a very effective method। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 रीड किया, तो हो सकता है कि I will use this location 5। ठीक है, फिर 10 यूज किया, तो that may be possible random, हम कोई भी random locations ले सकते हैं। Then we have a say 15, तो मैं यहाँ पर 15 यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, एंड likewise we have 20, तो we can use this 20 available cell, likewise 25 in the different location। तो हम इस तरीके से रैंडम एक्सेस करते हैं। और खास बात यह है कि इसको जो भी सेल आपको रीड करना है, सबके लिए the same time the system is using, and this concept is very similar to our array। तो array जो हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, it is actually like a your memory organization। तो जैसे हम array में रीड राइट कर सकते हैं, वैसे ही इस मेमोरी में भी रीड राइट कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम। तो ये स्ट्रीम का कंसेप्ट अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, सी इन एंड सी आउट ऑब्जेक्ट्स। तो दिस टू आर द वेरी यूजफुल ऑब्जेक्ट फॉर रीडिंग वैल्यू सी इन and writing value is C out। Also we have a different stream classes। हमने पढ़ा था IO stream। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? IO stream .h पढ़ा था। तो it is a one type of the stream available in the this C++। There are other stream also। तो that streams हमें पढ़नी है कि भाई उन स्ट्रीम को, जैसे फाइल के लिए हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अब यहाँ पे एक आपको नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज नोन एज ए फॉर्मेटेड आउटपुट। तो फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट के लिए वी आल्सो यूज सम डिफरेंट स्ट्रीम
हमें स्ट्रीम और देखना पड़ेगा। अभी तक हमने जो यूज किया है iostream.h, इट इज बेसिकली फॉर द अनफॉर्मेटेड, है ना, अनफॉर्मेटेड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड, भाई ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, फिर मतलब थ्योरी में तो अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर्मेटेड मतलब क्या हो गया, अनफॉर्मेटेड मीन्स क्या हो गया, लेट आई हैव ए 4 वैल्यू, से वन इज द 1, second is the your 10, and third is the say 1 yeah 100. Now fourth value is 1000. Okay, now we want to add these 4 values. तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास थोड़ा इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा कि इसका वैल्यू 4000 आएगा कि इसका वैल्यू 1111 आएगा। तो बेसिकली इट इज ए रॉन्ग फॉर्मेटिंग कि ये हम 1 को 1000 प्लेस में रखें, इट शुड बी इन द यूनिट प्लेस। तो ये यूनिट प्लेस में होना चाहिए। तो इसको यूनिट प्लेस में करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फॉर्मेट अवर दिस स्ट्रक्चर, ओनली इसको फॉर्मेट करना है। वैल्यूज तो वही रहेंगी, वैल्यूज बदल नहीं सकती हैं, वैल्यूज को नहीं बदलना है आपको, वैल्यूज तो वही रहेंगी, लेकिन वी हैव दिस काइंड ऑफ अवर वैल्यूज। तो यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि लेट वी हैव 10, तो हमको 10 को कहां लाना है, इस तरीके से लाना है। ठीक है, फिर हमें क्या लाना है 100, तो 100 कैसे लाएंगे, दिस शुड बी लाइक दैट। तो ये देखिए ये एक्चुअल में प्रॉपर वे होता है हमारे वैल्यूज को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेटिंग भी सिखाया जाएगा कि हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ अवर। अब इसका अगर मुझे सपोज करिए सम निकालना है तो आप बड़े इजी ढंग से आंसर बना सकते हैं। तो दोनों का आंसर कितना सेम ही होगा, कोई अलग अलग नहीं होना है, बोथ आंसर आर सेम। तो वो क्या है आंसर, तो आंसर इज अवर 1, है ना, इसका आंसर क्या है 1111। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। और यही आंसर यहां पर भी आना है, ऐसा कुछ बात नहीं है, दोनों के आंसर सेम है। लेकिन मेरे को आप बताइए किसमें ज्यादा आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो नेचुरली यू विल से कि आई विल कंफर्टेबल इन द यूर दिस काइंड ऑफ द मेथड। तो ये आपके पास जो है वो ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, ये जो मेथड है आपके पास ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड। अब ये इनपुट है कि आउटपुट है, ये आपको करना पड़ेगा कि इनपुट कैसे करें आउटपुट कैसे करें। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यूर फॉर्मेटेड, और ये क्या है आपका अनफॉर्मेटेड। ठीक है ना, दिस इज नोन एज ए अनफॉर्मेटेड। ओके, तो ये जो फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड है इसके लिए वी हैव ए मैनिपुलेटर्स। तो ये मैनिपुलेटर्स जो होते हैं ये एक्चुअली आपको मैनिपुलेट करेंगे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग अनफॉर्मेट टू यूर फॉर्मेटेड। दिस इज नोन एज ए यूर मैनिपुलेटर्स, हमें मैनिपुलेटर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड फेज है इस यूनिट का दैट इज नोन एज ए यूर फाइल सिस्टम। भाई फाइल सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रामिंग में होता है। मैं आपको बहुत सिंपल ढंग से समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन तो आपके पास में बहुत सारी चीजें होंगी, आप वहां से भी समझ सकते हैं, बट दिस इज द ओनली वे कि मैं आपको समझा सकता हूँ। तो in this video you can very easy understand this all simple topic। देखिए आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम है या कहीं पर डाउट आता है ना, तो you can ask me,
through any method. we have two method like a WhatsApp method. तो वहां पे आप मेरे को मोबाइल पर काम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो माई व्हाट्सएप नंबर इज 9826424484। आप इसके थ्रू मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे पास समय जब भी आपके लिए अवेलेबल होगा मैं तुरंत आपको उसका फॉरवर्ड कर दूंगा आंसर। और ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, आप इसमें भी कर सकते हैं, और ऑफिशियली तो आपको पता ही है, आप वहां से भी मेरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को किसी भी तरीके से आप अच्छे से इनपुट आउटपुट करवाइए। आई एम ऑल्सो यूर वन काइंड ऑफ द कंसोल, मैं भी आपके लिए कंसोल जैसा ही हूँ। आप मुझे अच्छे तरीके से यूज करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, और मैं फिर आपको भी यूज करूंगा फॉर मेकिंग ए डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस, ठीक है। हम मिलजुल के काम करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों कि ये सारी चीजें आपको किस तरीके से करनी है। ओके, तो अब हम पढ़ रहे थे लास्ट में क्या कर रहे थे हम, हाँ, तो अब हमके पास जो बचे हैं टॉपिक। अब देखिए जो फाइल सिस्टम फाइल स्ट्रीम है उसे हम C++ में कैसे यूज करेंगे उसे हम देखना चाहेंगे। देन वी आल्सो हैव आवर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस हैं फाइल मैनेजमेंट के, हमें फाइल से इनपुट आउटपुट कराना है, लेकिन मेनली इनपुट आउटपुट है। प्रोसेसिंग जो है वो तो रैम में आ जाती है वैल्यूज, फिर हम उसको अपने जो नॉर्मल वे से, जैसे आपको ये 5 नंबर का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ टू रीड। भाई जब तक सीपीयू के पास ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी तब तक हम कोई एवरेज या सम या बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट कैसे करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि भाई सबसे पहले इस वैल्यूज को रीड करना। तो ये हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, रीड ही तो कर रहे हैं। दिस इज द रीडिंग ऑपरेशन, ये रीड हो रहा है। अब ये ऑपरेशन रीड होने के बाद फिर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे आपको परफॉर्म करना है एडिशन का ऑपरेशन, भाई मेरे को सारी चीजें ऐड करनी है, मेरे को सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सब सीपीयू के पास में भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये अर्थमेटिक डिपार्टमेंट है, इसमें हम इसको काम कर सकते हैं। हमें निकालना है कि इसमें बिगेस्ट नंबर क्या है, तो हमारे पास में एक लॉजिकल सेक्शन भी है, तो लॉजिकल सेक्शन से हम इसमें से ग्रेटर निकाल सकते हैं कि भाई 5 में 10 कौन सा बड़ा है, तो 10 बड़ा है। 10 में से 15 कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है। 15 में से 20 कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है। और 20 में से 25 यानी 25 बड़ा है, तो 25, तो 25 इज द बिगेस्ट नंबर। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 5 में 10 आपका स्मॉलेस्ट 5 है, 10 बड़ा है। फिर 5 में और 15 में देखेंगे अब हम, तो 5 और 15 में कंपेयर करेंगे तो 5 फिर से छोटा निकला, 15 बड़ा है। फिर 5 को 20 से करेंगे कंपेयर तो 5 छोटा है और 20 बड़ा है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या है कि 5 और 25 यानी कि 5 एंड 25 को कंपेयर करेंगे, और लास्ट कंपैरिजन के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली आपके पास ऑपरेशन में आएंगी, और फिर हमें जो भी डिस्प्ले करना है, चाहे वो सम को डिस्प्ले करना है, चाहे एवरेज को डिस्प्ले करना है, ये हम राइट कर देंगे अपने स्क्रीन में, ठीक है। तो ये सारा जो काम है रैम के थ्रू होता है। अब इसी को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई रीड तो यहाँ से कर लो, लेकिन जो राइट है यहाँ स्क्रीन में ना करते हुए फाइल में करना है। तो वी आल्सो वांट द फंक्शंस, भाई आपको इसमें राइट करना है, तो राइट करने के लिए भाई कौन कौन से हमारे पास, जैसे यहाँ पर तो सी इन होता है ना, कहाँ पे आपके कीबोर्ड के थ्रू तो सी इन होता है, लेकिन यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, है ना, इसको आपको समझना है। फिर आपको यहाँ पर राइट करना है, तो यहाँ से आप इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ से रिजल्ट आपको कभी भी लेना है,
ऑफ, मतलब अभी क्या है फायदा है, देखिए अब फायदा ये है कि जो 5, 10, 15, 20, 25 है ये आपको डालना है रन टाइम में। अभी रन टाइम में तो हम कम से कम 5 वैल्यू, कम से कम 50 वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। ज्यादा डालने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक्सीडेंटल चीजें हो सकती है कि हम गलती वैल्यूज डाल दें। हो सकता है कि वैल्यूज डालते डालते ही हमारा लास्ट वैल्यू हमने डाला और हमारा सिस्टम हैंग हो गया या कुछ और डिफिकल्टीज आ गई, तो फिर से इनपुट डालो। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं जुड़ी हैं आपके कीबोर्ड से रीड करने में। इसीलिए तो फाइल मैनेजमेंट को हम यूज कर रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट में जितने आपको इनपुट डालना है, आप रन टाइम में डालने की जरूरत नहीं है, उसे आप ऑफ टाइम में डालते रहिए। और जब भी हमें यूज करना है वो वैल्यूज, हम डायरेक्टली फाइल को अपने प्रोग्राम में अटैच करेंगे, वहां से वैल्यूज रीड करेंगे और हम स्क्रीन में रिजल्ट शो कर देंगे। तो कितना बढ़िया हो गया। अब आप कोई भी काम डिपेंडेंसी नहीं रह गए, आप इनपुट के लिए किसी बंदे को लगा दीजिए जो डेटा ऑपरेटर का काम करता है, उसे लगा दीजिए। अब वो क्या करेगा, वो आपके ऑपरेशन का काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप काम दे दीजिए, वो अपना काम करते रहेगा भैया, ठीक है ना। आपको तो प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग पर ध्यान दीजिए। आप इनपुट आउटपुट, आप करोड़ों, जैसे अभी आपका कोरोना का डेटा आ रहा है जा रहा है, भाई वो सब के लिए हमारे पास सिस्टम है। हम इंजीनियर्स लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो टाइम वेस्ट होता है या टाइम यूटिलाइज होता है, मैं वेस्ट नहीं बोलूंगा, सभी का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑपरेटर का काम हो, चाहे डेटा प्रोसेसिंग का काम हो, चाहे उसमें डेटा एनालिसिस का काम हो, कुछ भी आप काम करिए, सारा काम हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। लेकिन हर काम हर व्यक्ति के लिए बना हुआ है। आपके लिए बना हुआ है प्रोग्रामिंग का एनालिस्ट करना। आप डेटा का इनपुट करने में टाइम दे देंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम किल हो जाएगा आउटपुट एनालिस्ट करने के लिए। तो लेट वी हैव some management files for the functions for the management of this file. नाउ हमारे पास फाइल मोड होते हैं कि हम किस मोड में फाइल का ऑपरेशन करें। तो वी हैव ए टू इंपॉर्टेंट मोड, वन इज द बाइनरी मोड एंड सेकेंड इज द रैंडम फाइल मोड। तो ये दोनों तरीके आपके पास हैं, आप कोई भी तरीका अपना यूज कर सकते हैं। देखिए बाइनरी का कंसेप्ट क्या हो गया कि आपके पास जो भी एज इट इज फॉर्मेट है रैम में, रैम किस तरीके से, देखिए रैम को अगर 5 को स्टोर करना है तो 5 तो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये बाइनरी कंसेप्ट में होता है रैम, ठीक है ना। ये हर चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। यू नो वेरी वेल हाउ टू राइट 5। तो 5 को राइट करने के लिए व्हाट वी हैव ए 4 0 and 1. It is known as a your 5 in the binary 1 0 1। तो 1 is a 4, 4 है, 4 आ जाएगा एंड 0 एंड 1। तो हियर यू हैव ए 5, इसको हम 5 बोलेंगे। जैसे हमको यहाँ पर 10 करना है तो यू हैव टू अगेन कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो हम इस फॉर्मेट में अगर फाइल में लिखना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज ए बाइनरी फॉर्मेट। तो ये बाइनरी फॉर्मेट को हम डायरेक्टली अपने फाइल में प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इट इज ए बाइनरी कंसेप्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से रैंडम करना है तो आप इसे रैंडम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही काफी है, अपन बड़ा वीडियो नहीं बना सकते ज्यादा। तो यहाँ पे आप इसको समझिए और आगे हम इसी तरीके से क्लास को बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू बेटा।